In our previous videos, we learned how to store information in variables and understood different data types. But if, if you notice something, every value we used was already written by us. यानी कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा, जो भी हमने अभी तक कोड प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर हर वैल्यू जो हमने लिखी वो हमने खुद प्रोवाइड करी प्रोग्राम को. प्रोग्राम ने हमसे कुछ नहीं पूछा, प्रोग्राम ने हमसे कुछ नहीं मांगा, हमने खुद प्रोवाइड करी, एक्सप्लिसिटली डेटा स्टोर करा उसके अंदर. But what if a program wants to ask you something? What if Python, the computer, wants to communicate with you? क्या ऐसा possible है कि कंप्यूटर आपसे communicate कर पाए? That's exactly what today's video is about. And now imagine if you are stuck, if you're creating a login page, like simple web page of login page you are creating, where every person logs in, and you know that every person who logs in has a different data, has a different information, different name, different passwords, and different kind of things. Each person has his own unique data, own unique information. So can we write everyone's name inside the program beforehand? जैसे कि हम अभी तक कर रहे थे. हमने क्या करा था? हमने नेम लिखा था जॉन, हमने नेम लिखा था राहुल. क्या हम हर किसी का नेम पहले से ही लिख सकते हैं? अगर लॉगिन पेज पे कितने सारे यूजर्स आते हैं, काफ़ी सारे यूजर्स आ सकते हैं. हमें पहली बात तो गिनती भी नहीं पता कि कितने यूजर्स लॉगिन पेज पे आएंगे. उसके बाद हमें ये नहीं पता कि कौन कौन यूजर्स आएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन एक्जैक्टली होगी क्या. तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो वहीं तक ही लिमिटेड था कि हम डेटा दे सकते हैं कंप्यूटर को. लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हर वक्त ये नहीं होता कि हम ही डेटा देना पड़े कंप्यूटर को भी हमसे डेटा मांगना पड़ता है. कंप्यूटर ऑल्सो नीड्स टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन. लॉगिन करते समय कंप्यूटर हमसे हमारा यूजर नेम पूछता है, हमारा पासवर्ड पूछता है. वो कैसे पूछता है? That means the program needs a way to ask user their information, every user for their unique information, like Python gives. Python also have a very simple function, inbuilt function for this, that is called an input function. So you need to understand what exactly is input function. So Python needs information from you for everything. Like take an example of login page, ATM machine, video games, registration forms, everything there you see in your daily life you use. You store information in the computer, it's stored in the backend. Doesn't matter any language is used, but the data is stored. But how the data is stored? Do you explicitly store in it? Yes, sometimes something you store explicitly, but कुछ बहुत सारी चीजें आपसे खुद पूछी जाती हैं. The computer itself asks you for login. The computer itself asks you for username, ATM पिन. तभी तो आप जान पाते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी प्रोवाइड करनी है. थिंक अबाउट इंस्टाग्राम आपके यूजर नेम मांगता है. योर बैंकिंग एप्लीकेशन जिससे आप पेमेंट करते हैं, जिससे आप अपना अकाउंट को मेंटेन रखते हैं, वो आपका पिन मांगता है. गेम्स आपके प्लेयर नेम मांगता है, आपका स्कोर, मतलब जो भी चीज़ आप उसमें खेलते हैं उसका रिकॉर्ड स्टोर होता है, वो आपसे एक्सप्लिसिटली आस्क करता है. एवरी एप्लीकेशन नीड्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर. सो बट हाउ डज द कंप्यूटर रिसीव दैट इन्फॉर्मेशन? यूजिंग द इनपुट फंक्शन. The name variable is there in front of you. We have used the input function. Now you need to understand one thing. Just remember one thing. Whenever we talk about function in Python, we use parentheses after that function name. As you can see, we have talked about two inbuilt functions previously in this video. In these previous videos, we have talked about print function to display the output. That used parentheses after that. And we talked about type function to display the type of the variable. That also used parentheses after the name type. So every function we talk about, every function. कोई भी फंक्शन, जब भी हम किसी चीज़ को फंक्शन कह देते हैं पाइथन के अंदर, उसके बाद पैरेंथेसिस का यूज होता है, और पैरेंथेसिस के अंदर ही सारा काम होता है. जो भी मेन एग्जीक्यूशन है, कोड है उस फंक्शन से रिलेटेड, वो सब पैरेंथेसिस के अंदर ही होता है. जैसे कि हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल लिया, इनपुट लिया, और एंटर योर नेम. इट इज़ अ मैसेज दैट इज डिस्प्लेड टू द यूजर, नथिंग एल्स. ये डेटा नहीं है जो स्टोर हो रहा है, ये केवल एक मैसेज है. अब यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे नेम लिखा, एंटर योर नेम. नाउ यू कैन सी वी हैव टाइप्ड एंटर योर नेम हियर, and what you have to see is we are printing a message, hello welcome to Python. We are printing the name that was given by the user. हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करा, हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा. एंटर योर नेम कुछ भी नहीं है, सिंपल मैसेज है जो कि डिस्प्ले हो रहा है. ये क्या करेगा? बस एक यूजर को एक आइडिया देगा कि आपको किस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, किस टाइप का डेटा आपको प्रोवाइड करना है. जैसे कि इंस्टाग्राम आपसे यूजर नेम मांगता है, वो आपको बताता है एक्सप्लिसिटली, एंटर योर यूजर नेम. तभी तो आपको पता चलता है कि आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, वरना आप अपना नेम एंटर कर दोगे. तो इसीलिए बताने के लिए एक मैसेज, एक डायरेक्शन है यूजर के लिए कि आप अपना नेम एंटर करिए. ये इसके बिना भी काम करेगा. अगर आप मैसेज नहीं भी देंगे, केवल इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, देन ऑल्सो इट विल वर्क. इट विल शो एट मैं आपको शो करके दिखाता हूँ. आई एम रनिंग दिस राइट नाउ. Now you can see it is asking me enter your name. See how amazing it is. It is asking me for entering my name. The computer is exactly, Python is exactly communicating with me, actually communicating with me. So this interaction is happening because of the input function. So now I'm keep providing my name to it, and as soon as I provide my name to it and I press enter, this name automatically gets stored in the variable name where I have taken the input. और वो स्टोर होने के बाद क्या होता है, वो अगली लाइन ऑफ कोड पे जाता है. अगर लाइन ऑफ कोड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो सिर्फ केवल नाम को स्टोर कर लेगा और वहीं स्टॉप कर देगा प्रोग्राम को. लेकिन अगली लाइन हमने दी है, प्रिंट करेगा वो एक ग्रीटिंग, हेलो वेलकम टू पाइथन. सो नेम के साथ अब देखते हैं एंटर करने पे क्या होता है. एंटर हमने करा और इसने क्या प्रिंट करा? हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोगनाइट. सो
it has welcomed us with a greeting message. So that is what the beauty of Python is. That is what the beauty of input function is. Now understand the flow of execution in this program. Python ने एक क्वेश्चन शो करा इनपुट फंक्शन की मदद से, एंटर योर नेम. दैट वाज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द यूजर. यूजर से पूछा गया अपना नाम एंटर करिए, यूजर ने अपना आंसर एंटर करा. पाइथन ने पहले उसे स्टोर करा वेरिएबल नेम के अंदर, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमने अगली लाइन जो लिखी थी प्रिंट कराने की ग्रीटिंग, उसने उसको पढ़ा और उसके बाद हमने वेरिएबल नाम भी लिखा था कॉमा लगा के. दैट इज द नॉर्मल सिंटेक्स यू हैव टू यूज. मैसेज को आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर यूज करा क्योंकि स्ट्रिंग थी और टेक्स्ट था, और उसे आप कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं. वेरिएबल नाम के आगे कोई कोटेशन मार्क्स नहीं लगाना, बीच में कॉमा लगाना था. सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है. करते करते आपको बिल्कुल आदत पड़ जाएगी इसकी. नाउ लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल. टेक एज. आई हैव टेकन एज वेरिएबल इनपुट. नाउ सी आई हैव टेकन इनपुट एंटर. नाउ आई विल शो यू विदाउट द मैसेज. अब आप सोच रहे होंगे कि मैसेज के बिना भी चलता है, नहीं चलता है. मैं आपको दिखाता हूँ मैसेज के बिना भी चलता है. अब इन दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं. सिंपल कमेंट करने के लिए हैशटैग से आप सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं. पाइथन में हैशटैग लगाने से पूरी स्टेटमेंट, पूरी कोड ऑफ लाइन आपका कमेंट आउट हो जाता है. मतलब पाइथन उसको इग्नोर करता है, सिंपली उसे पढ़ता नहीं. वो बस यूजर के लिए होता है, बस प्रोग्रामर के लिए होता है, ताकि वो इंस्ट्रक्शन के तौर पे होता है, ताकि यूजर अंडरस्टैंड कर सके कि उसने लिखा क्या था. एक हेडिंग के तौर पे यूज करी जाती है कमेंट, और कुछ भी नहीं. अब देखते हैं एज का कैसे इनपुट लिया जाएगा. देखिए यहाँ पे ब्लैंक आपको रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स दिख रहा होगा इन वर्टिकल पोजीशन. दैट इज व्हाट पाइथन इज आस्किंग फॉर एज इनपुट, बट इट इज नॉट डिस्प्लेइंग एनी मैसेज बिकॉज आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग हियर, सो इट इज ब्लैंक. सो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप उसके अंदर कोई मैसेज डालें. अब एज लिख देते हैं 21. नाउ लेट्स सी इट इज स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल एज. उसके बाद कोई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा गया था, इसलिए उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया. अब आप जानना चाहते हैं कि पाइथन ने एज को स्टोर किया भी है या नहीं. नाउ आई विल टाइप अ मैसेज हियर, यू आर. नाउ आई विल रन इट. नाउ इट सेज इट अगेन आस्क फॉर एज, बिकॉज ये टेम्परेरी मेमोरी रैम में स्टोर होता है. जो भी आप डेटा प्रोवाइड करते हो तो वो बार बार आपसे इनपुट लेगा जब जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे. आई एम टाइपिंग इट अगेन. नाउ इट शोज यू आर 21. सो इट इज परफेक्टली स्टोरिंग इनटू द वेरिएबल एंड सक्सेसफुली इट हैज प्रिंटेड द मैसेज एज व्हाट वी नीडेड. अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ. अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कराने के बाद अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ एक और प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके. क्या प्रिंट करा रहा हूँ, टाइप फंक्शन के बारे में आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. मैं टाइप करा रहा हूँ एज. सो नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड दैट हम टाइप करा रहे हैं, मतलब एज वेरिएबल का क्या टाइप होगा. एज हम 21 टाइप करेंगे, उसके बाद जब वो स्टोर होगी तो उसका क्या टाइप आना चाहिए. आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि इंटीजर आना चाहिए, एक क्योंकि एक एज नंबर ही तो है, उसका इंटीजर ही तो आना चाहिए. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. क्या आप सही हैं या गलत है? नाउ लेट्स सी 21. नाउ सी इट शोज क्लास str. स्ट्रिंग क्लास में दिखा रहा है, वो उसकी कैटेगरी स्ट्रिंग है, पर ऐसा क्यों? दैट इज व्हाट वी विल नो इन द नेक्स्ट वीडियो. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने इनपुट फंक्शन पढ़ा कि इनपुट फंक्शन की मदद से हम यूजर से इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर. पाइथन यूजर से इंटरेक्ट कर सकता है. हम यूजर से एक सवाल पूछ सकते हैं. यूजर इंटरेक्शन. पाइथन कैन नाउ टॉक टू पीपल. एक्चुअली दे कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली टू पीपल. वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर करते हैं यूजर के आंसर को, और ऑलवेज जो भी आंसर सेव हो रहा है वो एक टेक्स्ट की तरह सेव हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर भी टेक्स्ट की तरह सेव हो रहा है. दैट वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड प्रिंट फंक्शन की मदद से हम रिजल्ट को बैक टू द यूजर प्रोवाइड करते हैं. दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो.